Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Biology. We are with chapter Transpiration. This is episode 2.2.3. In the previous episode we have seen the measurement of transpiration by weighing methods. In that one we have used one method with the test tube and another method with the modified device that is containing a jar and a measuring cylinder. In this episode we are going to talk about a special device that is potometer, and potometer is an apparatus for measuring the rate of water loss from the chute. So that is nearly transpiration. So let us move on to our topic, the second method, that is measuring of rate of transpiration by potometer. So here we are going to start with potometer. So what is potometer? Potometer is a device used to measure the rate of water loss from a chute which is almost equal to the water lost through transpiration. So we can say water lost is equal to water absorbed. But considering the plant physiology, potometer is not an appropriate device to measure the rate of transpiration, because plant always keeps or store some percentage of water for its metabolic and physiological activities such as photosynthesis. So I hope you understood that potometer is not an appropriate device, but still we are using a potometer for measuring the rate of transpiration, because that's what it is. Amount of water absorbed is equal to amount of water lost. But according to the physiological condition of the plant, potometer is not an appropriate device. This is actually asked as 1 mark. Give reason in board examination. Why potometer is not an appropriate device for measuring the rate of transpiration. Understood? Okay. Let us move on further. Now, potometer is of two types. One is Gannon's potometer, another one is Darwin's potometer.
Darwin's pottometer is not there in your syllabus, but Ganong's pottometer is there in your syllabus. So we are not going to consider this one. This one is not in the syllabus. So we are going to check about Ganong's pottometer. डार्विन पोटोमीटर सिलेबस में नहीं है, गैनॉन्स पोटोमीटर सिलेबस में है. और गैनॉन्स पोटोमीटर कैसे दिखता है वो ड्रॉ करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको शायद एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, और शायद पूछेंगे तो क्या करोगे, इसलिए ड्रॉ करके बताते हैं. यहाँ पे तो ये है हमारा बीकर, उसको मॉडिफाई कर दिया है, नीचे से उसको ज्वाइन करके एक छोटा सा ट्यूब ग्लास इज बीन अटैच. उसके साथ में यहाँ पर रेजर्वॉयर को ज्वाइन किया है. क्यों ज्वाइन किया है वो बाद में, पहले ड्रॉ कर लेते हैं डिवाइस. और फिर यहाँ पर एक कैपिलरी ज्वाइन की है, विच इज हैविंग द मेजरिंग स्केल बिहाइंड इट. और उसको फिर बीकर में कनेक्ट किया है. Is filled with water. यहाँ पर मार्किंग्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10. सो 10 मार्किंग्स है सेंटीमीटर में, स्केल है इसलिए. और यहाँ पर पानी भरने के बाद उसको फिर सन में रख दिया. आपको एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं. तो अगर आपको ये डिवाइस किस तरह से यूज़ करते हो ये पता चलता है, उसका थियरी पार्ट, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपके लिए आसान हो जाएगा. इसे कहते हैं रेजर्वॉयर. इसका काम क्या है वो बाद में देखते हैं. और फिर यहाँ पर पौधा भी डालना है अंदर. और फिर पूरा सेटअप हमें सन में रखना है. Then put it under the sun. Now थोड़ी थोड़ी बार आपको अंदर एक चीज़ भी नोटिस करनी है. थोड़ी थोड़ी बार क्या नोटिस करना है कि हमने यहाँ पर एक बबल इंट्रोड्यूस किया है. नाउ इफ यू चेक दिस वन आउट,
तो थोड़ी देर में बबल मूव होने लगेगा आगे, तो इसका जो मूवमेंट है वो इस तरफ जाएगा। तो उससे पता चलता है कि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पानी ट्रांसफर हो रहा है। पानी एब्जॉर्ब कब होगा? जब पानी बाहर जाएगा तब, बराबर। पानी बाहर कब जाएगा? जब ट्रांसपीरेशन होगा। तो ट्रांसपीरेशन हो रहा है तभी तो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ? वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वाटर लॉस्ट। तो हमें पता चलता है कि कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। तो मान लो कि भाई 0 से वो 3 सेंटीमीटर तक बबल आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसने 3 सेंटीमीटर का पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है। दिस वन वी विल बी कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? ml आफ्टरवर्ड्स। अंडरस्टूड? तो उससे पता चलता है कि भाई ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रही है। सो दिस इज अबाउट द पोटोमीटर। बट while using potometer there are certain precautions that you require to know। क्योंकि ये डिवाइस तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन प्रिकॉशंस क्या है उसके? थियरी में आपको प्रिकॉशंस भी पता होने चाहिए ना। प्रैक्टिकल में तो पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर थियरी में पता चलते हैं तो प्रैक्टिकल में आप उसको अवॉइड करोगे। प्रैक्टिकल तो करना नहीं है, इट इज़ कमिंग इन अ कॉलेज लेवल। प्रैक्टिकल्स आर कमिंग अंडर इन अ कॉलेज लेवल। तो इसलिए अभी आपको सिर्फ थियरी पार्ट ही देखनी है। Understood? So let us move on to the precautions part, and then I will talk to you about the drawbacks of this potometer। तो सबसे पहले precautions, हमें क्या precautions लेने हैं? जो पौधा हमने लिया हुआ है, the plant that what we are having for this device should not be cut in a flat manner। Avoid cutting the plant, cutting the twig in a flat manner। क्यों? अभी इससे क्या होगा? तो अंदर क्या आता है? जाइलम। तो ये जाइलम है। अगर आप उसको फ्लैट कट करते हो तो जाइलम के ऊपर प्रेशर आएगा। जाइलम के ऊपर प्रेशर आने की वजह से क्या होगा? जाइलम थोड़ा सिकुड़ जाएगा। अगर जाइलम कंस्ट्रिक्ट हो गया, कंस्ट्रिक्शन ऑफ जाइलम विल टेक्स प्लेस। कंस्ट्रिक्शन ऑफ जाइलम अकर्स, बराबर। अगर जाइलम का कंस्ट्रिक्शन अकर होता है, अगर जाइलम का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है पता है? वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इज ब्लॉक, और आपका एक्सपेरिमेंट 2 घंटे 3 घंटे तक ऐसा का वैसा ही बबल आगे मूव होगा नहीं। तो इस प्लांट को हम किस तरह से कट करेंगे? तो प्लांट को कट करने के लिए हमें स्लांटिंग मैनर यूज़ करना है। स्लांटिंग मैनर का मतलब ऑब्लिकली। तो ये इस तरह से हम कट करेंगे। अगर हम इस तरह से कट करेंगे देन जाइलम कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, हमें इस तरह का उसका कट पार्ट मिलेगा। तो सी द जाइलम, तो जाइलम नॉट कंस्ट्रिक्टेड। and water absorption takes place efficiently। समझ में आया? तो कैसे कट करना है? ऑब्लिकली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं मारा, तो टाइटल लिख देना प्रिकॉशंस while working with potometer। Number 1, avoid cutting the twig in a flat manner। तो फिर कैसे कट करोगे? कट ऑब्लिकली। Cut obliquely in order to maintain the xylem from being constricted, so the water absorption takes place efficiently। बराबर? ये एक प्रिकॉशन हुआ। दूसरा प्रिकॉशन, अगर हम बाहर कट करते हैं, मान लो कि सपोज इफ द प्लांट इज कट इन अ स्लैंटिंग मैनर बट इन द एयर, तो क्या होगा? एयर जो है वो जाइलम के अंदर चली जाएगी। सो एयर विल एंटर इनटू द जाइलम। अगर एयर अंदर चली गई, अगेन देयर इज अ ब्लॉकेज in xylem due to
एयर, बराबर। तो हमें किस में रख के कट करना है, हमें प्लांट को पानी में रख के कट करना है। तो हमने पानी भरा बकेट के अंदर, फिर प्लांट डाला और फिर प्लांट को हम इस तरह से कट करेंगे। अगर हम प्लांट को इस तरह से कट करेंगे तो जो जाइलम है वो ऐसा क्या वैसा ही रहेगा और साथ में अंदर पानी ही जाएगा। अंडरस्टूड? सो कट द ट्विग while in water to maintain continuous water column। चलो समझ में आ गया। तो ये दो प्रिकॉशंस आपको ध्यान देने हैं। लेट अस मूव ऑन टू द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस पोटोमीटर। पोटोमीटर के तो ऑलरेडी वो डिवाइस अप्रोप्रिएट है नहीं और उस पे से भी उसके पास उसके ड्रॉबैक्स है। सो विल मूव ऑन टू द ड्रॉबैक्स ऑफ पोटोमीटर। सो हियर ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पोटोमीटर। सबसे पहला ड्रॉबैक है इंट्रोडक्शन ऑफ बबल। इन द कैपिलरी। तो पता है ये जो था छोटी सी कैपिलरी थी, उसके पीछे स्केल लगा हुआ था, बराबर, और वहाँ पे मैंने एक बबल बनाया था। यहाँ पर 0 पे रखा था बबल और फिर यहाँ से 1 2 3 करके यहाँ पे बबल आता है। तो ये जो बबल का जो इंट्रोडक्शन है कैपिलरी के अंदर वो थोड़ा कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल इन द कैपिलरी, इसलिए वो उसका एक ड्रॉबैक रहता है, टाइम वेस्टिंग है उसका। दूसरा, एयर टाइट या तो वाटर टाइट कंडीशंस होना ज़रूरी है। वाटर टाइट कंडीशन इसलिए कि अगर वाटर टाइट कंडीशन नहीं है और मान लो कि भाई एयर अंदर चली गई तो क्या होगा, जाइलम है या तो फिर कैपिलरी है, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि बीच में कैपिलरी के अंदर या 2-3 बबल आ जाते हैं। तो एक्चुअली होना एक ही बबल चाहिए, लेकिन अगर वाटर टाइट कंडीशंस मेंटेन नहीं किया तो 2-3 बबल आ जाएंगे, या तो फिर जाइलम के अंदर बबल आ गया तो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए वाटर टाइट कंडीशंस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर दूसरा एक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये जो एयर बबल है वो ब्रेक हो सकता है, यानी कि बर्स्ट हो सकता है। अगर बर्स्ट हो गया तो पता है वो जो रेजर्वोयर था पोटोमीटर में, तो उस रेजर्वोयर का अभी काम आएगा यहाँ पर। So this reservoir which was there in the potometer helps to reset the air bubble। यहाँ से नॉब ओपन कर दो, यहाँ से अगर नॉब ओपन किया तो पानी नीचे आएगा और वो पानी ऊपर तो नहीं जा सकता, इसलिए इस बाजू जाएगा। और वो जो एयर बबल है जो बस्ट हो गया था वापिस हमने इंट्रोड्यूस किया, उसको रीसेट करने के लिए, यानी कि ज़ीरो पे लाने के लिए रेजर्वोयर को ओपन करेंगे। तो ये यहाँ पर था तो धीरे धीरे वापिस अपनी जगह पे ज़ीरो पे ला सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ रेजर्वोयर इज। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेजर्वोयर? टू रीसेट द एयर बबल। समझ में आया? तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। What is the importance of reservoir in the potometer? It helps in resetting the air bubble। और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो फिर एयर बबल बस्ट हो जाएगा, इतना वो उसका ड्रॉबैक है। नंबर 4, अगर एक्सपेरिमेंट, इफ द एक्सपेरिमेंट रन्स फॉर द लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो जो ट्विग है वो मर सकता है, ट्विग विल डाई। वो ट्विग है वो मर सकता है। समझ में आया? सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पोटो
मीटर। तो ज़रा ये याद रख लेना, 2 ड्रॉबैक्स पूछते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। आपको मैंने 4 ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं, उसमें से 2 ड्रॉबैक्स आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट एज वेल एज द प्रिकॉशंस एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पोटोमीटर, और उसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया और साथ में गिव रीजन भी बता दिया कि भाई पोटोमीटर एक अप्रोप्रिएट डिवाइस नहीं है। थैंक्स वेरी मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।